کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لے کے چل رہی ہوتی ہیں، مسائل، مشکلیں، پرابلمز، یہ ساری چیزیں ہماری لائف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو ریموو کون سی چیز کر پاتی ہے، ہم کس طرح سے آگے بڑھ پاتے ہیں، ہمیں کون سی چیز آگے لے کے چل رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں لے کے چل رہی ہوتی ہے ہماری مستقل مزاج، ہماری کنسسٹنسی۔ اگر آپ مستقل مزاج ہیں تو یہ پرابلمز، یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں۔ ایک بہت اچھی سی مثال ہے کہ دنیا میں کوئی تالا ایسا نہیں بنا جس کی چابی نہ ہو۔ اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے آپ کو مارکیٹنگ کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، اگر وہ پرابلم آپ کے ساتھ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن بھی تو ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے، آپ اپنے کسی سینئر سے کنسلٹ کریں، اس پرابلم کو ریموو کریں اور دوبارہ سے ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے بدلے کے ساتھ ورکنگ کو سٹارٹ کریں۔ کچھ پرابلمس ہمارے ساتھ بھی ابھی ہو رہے ہیں، لائک کچھ ایسے دوست جو ہمارے ساتھ ہماری پچھلی کمپنی میں کام کر رہے تھے، وہ اب ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، بہت سی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں کے سکھائے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کی نظر ایک شیئر کرتا چلوں کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زبان ملی تو ہم پہ برس پڑے۔ یہ مسائل، یہ پرابلمز، یہ باتیں، یہ ساری چلتی ہی رہیں گی۔ اگر آپ مشکل مزاج ہیں تو یہ پرابلمز کچھ بھی نہیں ہے۔ مشکل مزاجی کی مثال کچھ اس طرح سے بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے اور تخلیق ہی نہیں کی۔ کیا ایسی کیا بات ہے کہ ہم سب سے پرومیننٹ ہیں؟ ہمیں اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ اس سورج کو کیوں نہیں کہا گیا جو ساری کائنات کو روشنی عطا کرتا ہے؟ ایسا ہم میں کیا ہے کہ ہم چاند کی طرح خوبصورت نہ ہونے کے باوجود بھی اشرف المخلوقات ہیں؟ وہ جو ساری رات کو منور کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی لاجک ہے اس کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم و فراست سے نوازا ہے، ہمیں اپنا شعور عطا کیا ہے، ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتے ہیں، اور وہ صحیح اور غلط کی تمیز اگر ہم کر پاتے ہیں تو کوئی بھی پرابلم ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ان سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہی موجود ہے۔ یہ ہمارے ہی بنائے ہوئے مسائل ہیں، ہمارے دماغ کی پیدا کی ہوئی باتیں ہیں، اور انہی پرابلمس کو ہم نے ہی حل کرنا ہے، انہی پرابلمس کو سالو کر کے ہم نے بہت آگے بڑھنا ہے اور آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے۔ ہمارے کچھ چھوٹے چھوٹے اچیورز جنہوں نے بہت اچھی ارننگ کی، اچیومنٹس کی، اب میں چاہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی ایکسپیرینس شیئرنگ بھی ہوتی جائے ساتھ میں، کہ ان دوستوں نے کس طرح سے اس سسٹم سے ارننگ کی، کس طرح سے وہ اس سسٹم میں آئے، انہوں نے یہاں سے کمایا اور اپنی ٹیموں کو سکھایا۔ اس ایکسپیرینس کے حوالے سے میں کچھ ناموں کو آپ کے سامنے بلاتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ان ناموں میں سے میں جس نام کو آپ کے سامنے بلانے جا رہا ہوں کہ انہوں نے اس سسٹم سے کیا ارن کیا، کس طرح سے وہ اس سسٹم سے کماتے چلے جا رہے ہیں، اس اپنی ایکسپیرینس کی شیئرنگ کے لیے میں سب سے پہلے بلانا چاہوں گا آپ کی بھرپور تالیوں میں چودھری مدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سارے بھائیوں کو السلام علیکم۔ میرا اس سسٹم میں تو یہ 5 انگلیاں ہی میری رہنما بن گئی۔ میں نے کچھ ریسرچ کی، کچھ نالج لیا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا سٹیپ بائی سٹیپ ایک سیڑھی آ گئی میرے سامنے، جس پہ چلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ آخر میں صرف ایک ہی چیز بچتی تھی، کامیابی، ناکامی نہیں۔ How we can achieve that؟ میں تھوڑا سا رائٹنگ میں سلو ہوں اس لیے میں لکھوں گا نہیں، آپ کو زبانی ہی سارا بولتا جاؤں گا۔ فرسٹ آف آل ایک چیز میں اپنے سب ملنے والوں سے کوشچن کرتا ہوں کہ what is your purpose of life؟ آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ کچھ کہتے دیتے ہیں کہ عالم اسلام کو متحد کرنا، یہ تو بڑے بڑے کوششیں کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا آج تک؟ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے یا اس پہ کتنی سٹرگل کی؟ تو جواب ہوتا ہے کہ ابھی میں خود کو تیار کر رہا ہوں۔ بھائی جب تیار کر رہے ہیں خود کو، آغاز نہیں کیا اب تک، تو آپ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کبھی بھی مکمل تیار نہیں ہو پائیں گے۔ There is nothing complete
टोटली कंप्लीट इन द वर्ल्ड, कुछ भी मुकम्मल नहीं है सिवाय उस जात के जिसने सब बनाया है। तो क्या करना है? एक आगाज करना है। कहां से करना है? अपने मकसद से। देखें आपका मकसद क्या है। पहली चीज अपना मकसद देखें। ये मैं छोटी उंगली को इस मकसद की वजाहत करता हूं। मकसद मैंने रख लिया अपने सामने, टारगेट। उसके बाद नॉलेज, मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठा करना चाहा, लेकिन पहला जो लफ्ज मैंने उसके लिए सीखा वो था कि पहले को फैसला करो कि तुमने नॉलेज हासिल किस चीज का करना है, प्लानिंग करो फिर नॉलेज करने आना। काज़ी आज़म का एक कॉल था कि मैं फैसला पहले करता हूं, उसको गलत या सही अपनी कोशिश से बाद में बनाता हूं। मैंने उसके सामने रखा, मैंने नॉलेज इकट्ठा करना शुरू छोड़ दिया, मैंने एक प्लानिंग की, मकसद, फिर उस पर प्लानिंग की कि मैंने अपना मकसद जो है वो अचीव कैसे करना है। मेरा मकसद था पाकिस्तान में से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देना। हाउ आई कैन डू दैट? क्यों था? क्योंकि मेरे बहुत ही अच्छे, बहुत ही अजीज दोस्त कुछ अर्सा पहले कुछ बेरोजगार अफराद के हाथों डकैती की शक्ल में उन पे वारदात हुई और वो फौत हो गए। मुझे बड़ा दुख हुआ उस बात पे। मैंने अपने टारगेट रख लिया था, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है। फिर मैंने प्लानिंग की कि मैंने उसको नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन जॉब पोर्टल, मैं अपने कहानी सुना रहा हूँ कि उनके जरिए सॉल्व करना है। मैंने 2 प्लानिंग में अपने रास्ते तलाश कर लिए। फिर उसने नॉलेज दिया कि मैंने जो प्लानिंग कर ली है इसको दुरुस्त करना है। तीसरा स्टेप था मेरे पास था नॉलेज। दूसरे से तीसरे पे चला गया नॉलेज। मैंने उसके लिए मुकम्मल नॉलेज लिया कि जब भी कोई मुझसे इनके बारे में क्वेश्चन करेगा, बिकॉज़ सक्सेस नीड्स अ बिगिनिंग नॉट अ इख्तिताम है। ऐसा ही नहीं, कामयाबी भी एक शुरुआत है एक नए सफर पर। तो कामयाबी एक शुरुआत मांगती है। चौथा जो मेरा स्टेप था वो एक्शन था। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू कर दिया। जैसे शुक्र भाई एक शेर पढ़ रहे थे आगे, लिए तेरे नैन और दूध पड़े पानी में। फिर मैंने फिलहाल इंटरनेशनल के नैन लिए और दूध पड़ा। क्या इसमें से पार निकलना है? पार खुद आ गया हूँ या किसी ने धक्का देकर इसमें डाल दिया है, लेकिन अब इसमें से पार ही निकलना है। पीछे का रास्ता जो है वो मसदूद है मेरे लिए। मैंने चौथा स्टेप लिया। पांचवा स्टेप कंसिस्टेंसी। 20 सालों में भी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं कर पाता तो मैं 20 साल भी अपने इस काम पे लगा रहूंगा, क्योंकि मुश्किल मिजाजी एक चीज है, एक ऐसी चीज है कि एक चाय बेचने वाला या एक जो चूहे मार गोलियां, मैं बड़ी मिसाल देता हूँ, बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे खुद ही, कि एक चूहे मार गोलियां बेचने वाला बंदा जो है ना, वो हमारे आने वाला के गोल चौक में खड़ा होता है, और आने वाले से 26 किलोमीटर दूर मेरे गांव से भी कोई घर से निकलता है ना, कोई शॉपिंग करने शहर जाता है, तो घर वाले कहते हैं भाई गंदम के दानों में रखने के लिए चूहे मार गोलियां लेके आनी है, तो वो गोल चौक में खड़ा होता है, वहां से लेके आना है। तो बेली दिलावर से भी चलता है तो उसको भी पता होता है कि मैंने आने वाला अगर गोलियां लेनी है तो वहां से लेनी है। उसकी एक अपनी पहचान बन गई है, बिकॉज ही वाज कंसिस्टेंट सिंस मेनी इयर्स देयर। वो मुस्तकिल मिजाजी से वहां खड़ा था बहुत सारे सालों से, और आज उसकी गॉड प्रॉमिस। और जो नहीं करेंगे ये 5 स्टेप, क्या होगा? तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाचात। जो लोग मेहनत नहीं ना करेंगे, जो लोग इन 5 स्टेप में एक्शन नहीं लेंगे, फिर कांस्टेंट नहीं होंगे, वो कभी भी ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकेंगे जो उनके ड्राइवर है। लाइक मैं एक छोटे से शेर से खत्म करना चाहूंगा अपनी बात को, कि ख्वाब सब देखते हैं और ख्वाब मेहनत मांगते हैं, मेहनत सब नहीं करते। मैं मुश्किल मिजाज नहीं था, होने की कोशिश कर रहा हूँ, जो है उनको देख के आप भी होने की कोशिश कीजिए इंशाल्लाह। टारगेट के लिए हमारे एक बहुत ही प्यारे साथी हैं जिन्होंने इस सेटअप को अरेंज करने में भी मेरी बहुत हेल्प की। मेरे साथ मुश्किल जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे इस सिस्टम को लगाने में, यहाँ पे मैनेजमेंट के हवाले से, उनको भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने टैकल किया, और माशाल्लाह से एक लॉ के प्रैक्टिशनर हैं और दोस्तों की भरपूर तारीफ में अब तशरीफ लाएंगे बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही हैंडसम और बहुत ही टैलेंटेड शेर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। नाम से तो आप लोग मुतारिफ हो गए होंगे, कुछ लोग मुझे मेरे बाप की वजह से भी जानते हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ फलाह इंटरनेशनल का कि उन्होंने मुझे एक शख्सियत दे दी, एक ऐसा नाम दे दिया जिससे मैं आप सबके सामने स्टेज पे खड़ा हूँ।
जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये काफी नहीं कि आप एक अच्छे खानदान में पैदा हुए, एक अच्छे बाप के घर पैदा हुए, अच्छी दोस्ती रखी। ये भी काफी है कि आपने जिंदगी में अपने लिए क्या सोचा कि मैं कैसे कामयाब हूंगा। तो सबसे पहले मेरे ज़हन में गया माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले उस अंग्रेज का कौल। उस अंग्रेज ने जब माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश की तो बहुत से लोगों ने कहा यार ये नहीं होगा माउंट एवरेस्ट सर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। वो सर करने गया, मुश्किलें आई, नाकाम रहा, वापस आ गया। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने भी फला इंटरनेशनल को ज्वाइन किया, कुछ दोस्तों के साथ शेयर किया, कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने जवाब दिया। तो मेरे जहन में उसी अंग्रेज का कॉल आया। जब वो नाकाम हुआ तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसने माउंट एवरेस्ट की पिक्चर को ऐसे हाथ में लिया और कहा माउंट एवरेस्ट तू दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, लेकिन मैं तुझे सर करूंगा। तुम्हारे नाम पर होने से मुझे डिवोशन मिली है। तो वो डिवोशन, वो सब कुछ मुझे मेरे सीनियर से मिला, मुझे फला इंटरनेशनल से मिला, और इंशाअल्लाह उसी को साथ लेकर आप दोस्तों की दुआओं के साथ चलते रहेंगे। कि बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही छोटे हैं मुझसे उम्र में भी, बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, और आप लोग बहुत से लोग जो हैं उनको जानते होंगे। आपकी भरपूर तारीफ में तशरीफ लाते हैं। मैंने कहा जो बात है अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, इतने काबिल नहीं था मैं। बस इतना ही कहूंगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी शिनाख्त इस टाइम और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में फला इंटरनेशनल में एज ए सीनियर प्रेजेंटर और एज ए सीनियर में होगी। अभी तो मैं जूनियर हूँ और मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ, और खुदा के फजल करम से अगर मेरे सीनियर का साया मुझसे ऐसे ही सलामत रहा तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि मैं अजीम भाई की तरह इधर खड़ा होकर इतने ही जोशो खरोश के और बदले के साथ बोलूंगा और आप सब लोग तहकीक करेंगे। मैं आपकी मतलब जो पर्सनैलिटी है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आपने मतलब के 1 माह और 10 दिन के अंदर स्कूल कायम किया है, और इंशाअल्लाह मेरे दिल में एक बात आ रहा था कि मैं वो आपसे कम से कम अरसे में वो पूल खड़ा करूं और ऐसे मेरी टीम में छोटे पूल और बनते जाए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन ऐसा सच में। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस शरीक के हवाले से कि वहाँ अपने एक्सपीरियंस से हमें यहाँ से मुस्तफीद फरमाए कि किस तरह से उन्होंने फ्लाई इंटरनेशनल में कदम रखा और किस तरह से उनकी अर्निंग और उनका एक्सपीरियंस, उनका टीम को लीड कर